एक मोबाइल मेरे पास आ गया है। अच्छा आ गया ना ना नीचे नीचे वीडियो कैसे लेके फोटो बाद लो ना वीडियो पूरा इंटरनेट चालू कर दे यहीं पे। हाँ कर लो। कहाँ गया लाइव? बेटा किस पे ले रहा है? बेटा ये सब बातें करते रहेगा तो मेरे को ये मत कर मेरे बच्चे, वरना मैं तेरे को रास्ता दिखा दूंगा बेटा। हाँ मैं रास्ता दिखा दूंगा बेटा। जब एक मैं बोलते हम तो कर लेना बेटा पहले, वरना तेरे को एक्सक्लूसिव मिल जाएगा ना। इंस्ट्रक्शन मिला है ऑफिस में, वो भी आप विजिट करो। आज चल रहे बाइक। Hello, check one. Hi. गली 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 जट जरा हंस दे तू, हाँ हंस दे तू। लोग है रीना जी, आज आप यहाँ पे किस म्यूजिक एल्बम का रिलीज कर रहे हो? लुक इन सेंट्रल लाउड। So this music album is basically ghazal, and the title is Bhool Na Paoge, and we are releasing it today and having a good launch for the same. इसमें आपके टोटल कितने गाने हैं? ये एल्बम टोटली 6 गानों का बना पड़ा है, एंड इसमें 4 डुएट्स हैं और 2 गज़ल्स हैं, 1 ईच ऑफ मी एंड अनूप जी। हमने सुना है कि आपने बॉलीवुड में इससे पहले भी कई बार प्लेबैक किया हुआ है, तो जरा अपने ऑडियंस को बताएंगे कि आपने किस किस सिंगर के साथ में पहले गाने गाए? वेल मेरा फर्स्ट एल्बम मरहम था, जो आई थिंक नियरली 1 ईयर बैक रिलीज़ हुआ था। उसके बाद मुझे ऑफर्स आए थे फिल्म्स में गाने के लिए, एंड सो फार आई हैव संग विद कपल ऑफ गुड प्लेबैक सिंगर्स लाइक recently I must say Suresh Wadkar ji, and then Aman Tirkha, Dev Negi, Shahid Malia ji, as well as just to name a few, you know. आप पेशे से डॉक्टर हो, गाने का शौक आपको कब और कहाँ और कैसे लगा? Well, music is in my genes, I must say. My grandmother, it comes from my grandmother, my mom, they were all classically trained singers. I had a passion for music, but I never got a chance to learn it. But when my parents used to learn music, I've been listening to it, and that's how it's gone into my ears. Over the years, after my education and my profession, it's very stressful. My friends were singing. I started my singing with my friends, and that's how I came into this profession, and I really enjoy it. And I just considered this as a luck factor, you know. And the transition from singing with my friends to Bollywood was very smooth for me, just because I think previously mentioned by some music directors, like my tone of voice was different. They wanted to try it, and that's why I got an offer. You're a successful doctor, so why are you interested in singing line? Singing, I think whether you're a doctor or an engineer, whatever profession you are in, I think music is loved throughout the world, you know, by everybody. It's like a meditation, and it keeps you away from all the stress and strains of life, you know. And I have seen that even doctors and scientists who are like day and night working, they have some hobby which is related to music, may it be harmonium or tabla or piano or singing, you know. So something which relieves your stress and it acts like a meditation for us is really beautiful, you know, to keep us healthy and happy. How is the experience with Anup Jalota ji? It's wonderful actually. He is such a wonderful human being, very kind person, very soft spoken, and he makes you feel very comfortable, even though he's very well known bhajan samrat, a ghazal singer, and very strong in his music. But I got to learn a lot from him, lot of encouragements, and he made me, my nervousness was to think that he got rid of me and I could perform quite well, you know. So it was a wonderful experience to work with him. As a human being, I will say that he is one of the best. And about your cameraman and director Ashok Mehta, how is he as a person? These people are really awesome. I have really enjoyed working with entire team of mine, as well as the director, the music directors. They're just awesome, I must say. I really thank them, and I really want that I will be working with them again, you know. I have no words to express my gratitude and my heartfelt thanks to them, the way they have worked without an itch, without
and with a lot of patience. Like हमको पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कितने अच्छे से हो गया, Hats off to Ashok Mehta ji, who's the director, the music director, and the entire team, It was so smooth and very successful. How is the first experience Of your album, this Ghazal. So this is my first Ghazal album, and I must say बहुत अच्छा experience रहा, And we are coming into a series of Ghazal albums. This is the first of them. आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? सिंगिंग में हिंदुस्तान में रहोगे या वापस ऑस्ट्रेलिया जाके डॉक्टरी करोगे? So I want to be in my profession, but I think this is the third time I'm coming in this year in the span of 3 months. और हम जब भी रिकॉर्डिंग के ऑफर्स आते हैं हम आते हैं यहाँ पे. I have gone part time with my profession so that I can pursue my hobby of singing. Worked all my life in my field as a scientist and a doctor, but I think music is something which I would like to take forward and stay on it. भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, तो कभी एक्टिंग करने का ख्याल नहीं आया आपके दिमाग में? क्योंकि गाने तो कर ही लिए हैं. एक्टिंग करने का ख्याल, गाने का भी ख्याल नहीं आया था कभी. बट एक्टिंग की ऑफर मिलेगी तो आप एक्टिंग करना पसंद करोगे? यस, करूँगी. करेंगे. Because acting is as well in my genes. My parents were into direction and acting. Some family members are into it. So if I, definitely I will. What is your future planning? Future planning is like to work in my profession part-time, to pursue my singing over here. I have got an offer for a couple of ghazal series with different people as well as Anup Jalota ji, some fusion. So I have to make sure that everything is completed as per the requirement of the music directors, and also I will be pursuing it definitely. इसमें 6 गज़ल है, 6 के 6 गज़ल अपने अपने मुड़ के है, बहुत बेहतरीन है. कल को अगर आपको हिंदुस्तान में प्रोग्राम की अगर ऑफर आई तो क्या आप अनुप जी के साथ में प्रोग्राम करना पसंद करोगी? जी ज़रूर. ज़रूर. I will definitely, yes. थैंक यू. डोंट गो. अनुप जी, आप किसको क्यों कहना चाह रहे हो भुला ना पाओगे? ये रिकॉर्डिंग करके रिलीज़ करके एल्बम को जब ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी तो फिर मेरा कहना है कि भुला ना पाओगे. इनके साथ में आपने 6 गाने किए हैं और माशाल्लाह इसका पिक्चरेशन बहुत खूबसूरत हुआ है. कमाली हुआ. और गाने के बोल भी बहुत बेहतरीन है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है. तो इन टोटली पैकेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आपके डायरेक्टर के लिए? ऐसे एल्बम कहाँ बनते हैं कि उसकी जो सिंगर है वो खुद ही एक एक्ट्रेस लग रही हो? कहाँ है ऐसा? तो यहाँ हमको कोई मॉडल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही इन्होंने गा दिए सब गाने, पिक्चराइज कर दिए. बहुत अच्छा लगा. एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ जो रीना जी को भी पता नहीं है कि हमारी और रीना जी की एक बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ज़बरदस्त. वो ये है कि मेरे नाम के आगे भी TA आता है और इनके नाम के बाद भी TA आता है. रीना मेहता, अनूप जलोटा. सोचा कभी आपने? नहीं सोचा ना? हाँ, टाटा हो जाता है. तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि दोनों को मिलना ही था और गाना ही था. इसमें कितने गाने हैं, किस अंदाज के गाने हैं आपके हिसाब से? मैडम से तो पूछ लिया. रोमांटिक गज़ल्स और ट्रेजिडी गज़ल, पैथोस की गज़ल, वो सब मिला के ये एल्बम बना है जिसमें सोलो भी हैं, डुएट भी हैं. और मैं समझता हूँ कि हर गाना एक अलग स्टाइल को लेके चलता है, अलग अंदाज को लेके चलता है. जो सुनेगा बार बार सुनेगा और उसको हम यही कहेंगे कि भूला ना पाओगे. बहुत बहुत शुक्रिया. कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर अभी के जो यंगस्टर्स हैं वेस्टर्न म्यूज़िक की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं, क्लासिक म्यूज़िक कम हो रहा है. इसको क्या कहना चाहेंगे आप? तो चेंज तो आता रहेगा. पहले हम लोग बेल बॉटम पहनते थे, पैंट पहनते थे ना, कितनी चौड़ी बेल बॉटम. फिर उसके बाद वो चली गई, अब फिर नॉर्मल आ गई. तो ऐसे ही ये सब चला जाएगा, फिर नॉर्मल म्यूज़िक आ जाएगा. ये तो बदलता रहेगा समय. इसमें से फेवरेट सॉन्ग की बात करें तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग 6 गाने देखा जाए तो फिर भुला ना पाओगे जो टाइटल है. 2 लाइनें हो जाए, सुनाइए. I'll get mixed up with the. कोई तुम
कोशिशें हजार करो भूल ना पाओगे। इनका संगीत है। क्या अच्छा काम किया उमेश जी ने। उमेश जी आइए, कुछ आपसे दो बातें हो जाए आपके संगीत। कैसा लगा आपको जब हम लोगों ने आपका कंपोजिशन गाया? ठीक ठाक लगा या आपको लगा ठीक नहीं गा रहे? सर एक्चुअली मैं बिल्कुल दिल से बोलना चाहता हूँ कि आपने और रीना जी ने मेरे जो शब्द और संगीत रूपी शरीर था उसमें जान डाला है। और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑडियंस खुद जज करेगी। बट मतलब वर्डलेस, मैं कुछ बोल नहीं सकता, इतना आनंद आया। और आप लोगों ने जो गाया है उस कंपोजिशन और लिरिक्स को जान आ गई। हमें बड़ी मालूम पड़ा खुशी। कि अनूप सर और मैम गाने वाले, तो क्या रिएक्शंस थे? नहीं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने मैम को एक स्टूडियो में गाते हुए देखा, मेरी मुलाकात हुई, तो कुछ टोन मुझे डिफरेंट लगा, इनकी वॉइस टेक्सचर अलग लगा। तो हम लोगों ने बेसिकली, मैंने इनको बोला कि एक ऐसा करते हैं, क्योंकि गज़ल बहुत दिन हो गए आई नहीं है मार्केट में, और जितने ऑडियंस हैं हमसे पूछते रहते हैं कि आप लोग डिफरेंट टाइप के सॉन्ग बनाते रहते हैं लेकिन गज़ल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मैम को बताया, तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर हम लोग बैठ के पूरा एक सिचुएशन तैयार किया कि किस टाइप के सॉन्ग होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। फिर तैयार करने के बाद मैं सर के पास गया और सर ने भी तवज्जो दी और बड़े दिल से गाए, तो बिल्कुल स्पेशल थैंक्स फॉर हिम। मैं यही कहना चाहूँगा कि उमेश जी बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, जो करते हैं अच्छा काम करते हैं। और इन्हीं गानों को जब रीना जी ने गाया तो एक खूबसूरत चीज़ बन के बाहर आई है। तो हम दोनों ने जो मिल के प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि लोगों को अच्छा लगेगा। अनु सर फाइनली सर, आप लोगों के बीच में रहते, देखा जाता हम लोगों के बीच में रहते, पेट्रोल प्राइस 85 के लमसम में आ गए, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? पेट्रोल प्राइस कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बढ़ने से बाकी चीज़ों की भी जो प्राइसिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर महंगाई कम करनी है तो पेट्रोल डीजल का प्राइस ज़रूर कम करना पड़ेगा। अच्छे लगे और इसका रिजल्ट इतनी जल्दी मिलने लगा है कि अभी 10 मिनट हुआ डाल के जी म्यूजिक पे, और ये गाने 3 से 4 हज़ार व्यू हो गए सिर्फ ऑडियो पे। तो अभी आप समझ सकते हैं फिर वीडियो कितना हल्का, वीडियो कितना, ऑडियो में इतना बढ़। हाँ, तो मुझे लगता है कि रीना जी को फिर इंडिया में रोक लेना चाहिए इनको, क्या 100% क्यों जाने दें वहाँ? हाँ, फिर ये इतना जाना आना थोड़ा पॉसिबल हो इनको जाएगा, यहीं रोक लें तो इसके लिए रुकना तो और पड़ेगा। इनके पति को अगर इनसे मिलना हो तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ जाए करें, फिर जैसे इनका वीज़ा आना जाना हो रहा है इसे उनका वो आएंगे, आके मिलें, चले जाए वापस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया।